So we are starting with our next topic, that is immunology, in which we discuss the high yield points regarding immunology. Firstly, what is the definition of immunology और immune related जब आप कोई भी system study करते हैं तो how will you concerned about that कि आपने इसके अंदर कौन से aspects की बात करनी है. The word immune mean it is related to your immune system. Immune system in your body, it behaves like different ways. It may be overactivated or it may be suppressed. So there are two types of diseases related to your immune system. That is, either these diseases are autoimmune diseases in which your immune system is boosted up, or other type of diseases are the immune suppressive diseases just like AIDS, HIV, which causes your immune system to depressed. So इम्यूनोलॉजी के टर्म्स में जब हम बात करेंगे तो हम डिफरेंट टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की बात करेंगे कि whenever any antigen, any pathogen, bacteria, virus, parasite attacks to your body, how your body behaves. This term is called as this antigen antibody reaction leads to your activation of defense mechanism, which ultimately leads to the production of antibodies against that pathogen. All this interaction between antigen and antibody leads to the term which is called immunology. Now comes to the points in which we discuss about how the immune system behave. So there are multiple high yield points which are repeated in part 1 again and again. Number 1 is that B cells are present within the follicles of white pulp. What are the B cells? These are basically the lymphocytes. They may be B lymphocyte or T lymphocyte. It means that whenever your immune system is activated, lymphocytes behave firstly. B lymphocytes, they are used or their function is to produce antibodies, and T cells, they are also involved in providing immunity against the pathogen. B cells, they are always present within the follicle of white pulp. It means white pulp of the lymph node. ये lymph node की बात हो रही है कि अगर आप lymph node का structure देखते हैं तो बाहर उसके एक cortex होता है, ठीक है. अगर आप अब lymph node की बात करते हैं तो lymph node के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है. तो lymph node के अंदर आपको नंबर 1 इज दैट कि आपको cortex का एरिया मिलता है, इनर पोर्शन मिलता है विच इज कॉल्ड एज मेडलरी पोर्शन. सो वहां पे आपको दो रीजन्स मिलते हैं. जो आपके बी सेल्स हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट वाइट पल्प. वाइट पल्प मीन विद इन द इनर मोस्ट पार्ट. जो इनर मोस्ट पार्ट होगा, सेंटर होगा, वहां आपको बी सेल मिलेंगे. टी सेल्स दे आर प्रेजेंट इन पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट्स. आउटर मोस्ट पार्ट जिसके ऊपर जो आपका लिम्फ नोड है उसको सराउंड किया हुआ जिस एरिया ने, वहां पे आपको टी सेल्स मिलते हैं. So B cells, they are present within the center, and T cells, they are present at periphery. Thymus, it contains capsule but no lymphatic nodule. This is the important statement which differentiate the thymus from other lymphatic organs. There are four mainly lymphatic organs in your body. That is lymph node, thymus, spleen, and palatine tonsils. There are four lymphatic channels और 4 lymphatic आप कह सकते हैं organs आपकी body के अंदर present होते हैं. Number 1 is thymus, number 2 spleen, number 3 lymph node, and number 4 is palatine tonsils. Almost all these structures all these organs have the similar structure except thymus. Thymus का differentiating point ये है कि उसके अंदर कोई lymphatic nodules नहीं present होंगी. lymph node के अंदर भी आपको nodules मिलती हैं, spleen में भी मिलती हैं, और आपको palatine tonsils में भी मिलती हैं, लेकिन thymus के अंदर आपको nodule नहीं मिलेंगी. This is important and distinguished point from the other lymphatic organs. The patient having post splenectomy, thrombocytosis हो गई है, उसमें फाइंडिंग आपको क्या मिलेंगी? तो फाइंडिंग इज होवल जॉली बॉडीज. होवल जॉली बॉडीज आपको हमेशा उस पेशेंट में मिलेंगी विच इज पोस्ट स्प्लीनेक्टमी पेशेंट. पोस्ट स्प्लीनेक्टमी पेशेंट हैज होवल जॉली बॉडीज.
Now comes to the definition of graft versus host डिजीज क्या होती है या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन क्या होती है. तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स इन द डोनर ग्राफ्ट रिकॉग्नाइज द रेसिपिएंट्स एंटीजन एज फॉरेन एंड दे रिएक्ट अगेंस्ट देम. इट मींस कि दिस इज रिजेक्शन. एक डोनर है, उसने अपना टिश्यू जो है वो डोनेट किया है. एक नॉर्मल हेल्दी वो पर्सन था, उसने अपना टिश्यू डोनेट किया उसको, जो कि आपका क्या है, पर्सन डिजीज्ड है. अब जो पर्सन डिजीज्ड है उसकी बॉडी क्या करती है कि जो आपके पास सिस्टम ने रिकॉग्नाइज करना था उसके लिए उसके साथ बेसिकली उसके साथ कोलैबोरेशन में काम करना था. तो हुआ क्या कि वहां पे उसने कोलैबोरेशन में काम नहीं किया. इनफैक्ट वहां पे क्या हुआ कि वहां पे उसने उसी के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन. whenever there is response against that, so this term is rejection. Hazel corpuscle, mostly it is common in transplant patient. Hazel corpuscles contain epithelial reticular cells. Hazel corpuscles, they are the significant structures present in the thymus. As I told in the previous point, that thymus, it doesn't contain lymphatic nodule. So what's the structure which is present other than lymphatic nodule? That is Hazel's corpuscles. These are the bodies which contain epithelial reticular cells. तो ये bodies होंगी जो इन nodules को replace कर रही होंगी. ठीक है. That anti-basement membrane antibodies are present in. Anti-basement membrane antibodies mean कि this is related to glomerular disease. Glomerulus के अंदर, glomerulopathies के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं. तो दिस इज द सिनेरियो फॉर गुड पॉस्चर सिंड्रोम. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और ये आपके पार्ट 1 के अंदर आता है कि एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज किसके अंदर पॉजिटिव होंगी. तो दिस इज एन ऑटोम्यून कंडीशन, इट इज गुड पॉस्चर सिंड्रोम. और समटाइम्स इसमें क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि there are the production of antibodies against the basement membrane in linear pattern. Linear deposition होती है antibodies की. Again the answer is good posture syndrome. AIDS, as I told that AIDS is an immunosuppressive state. Major type of cell affected are helper T cell 1 cell. And if there is the scenario about the CD markers or CD type cells, so that will be CD8 type cells. तो हेल्पर टी सेल 1 है. एमएचसी क्लास मेजरली कौन सी होगी इन्वॉल्व? यस प्लीज. एमएचसी क्लास 1 or 2? 1. 1. And the cell will be CD8. Fab portion is for antigen binding fragment. Remember, FAB, Fab means A stand for antigen and B stand for binding. This is the portion which bind the antigen. And FC portion, C is representing the complement binding. So it is for the complement binding. So A stands for antigen binding and C stands for complement binding. Smallest immunoglobulin is. Smallest की बात हो, it means कि बात हो रही है size wise. So that is IgG. Largest is IgM. M is largest and G is smallest. But IgG, as it is smallest, but it has it's abundant among all the antibodies. So abundant and smallest is IgG. And IgG is also the immunoglobulin which crosses the placenta. तो 3 आपने पॉइंट्स IgG के रिगार्डिंग याद रखने हैं. नंबर 1 is smallest, number 2 most abundant, and number 3 is it crosses the placenta. लार्जेस्ट की बात करें तो IgM है. मिनिमम सीरम के अंदर कौन सी होती है? सीरम के अंदर सबसे कम IgE होती है. ठीक है. E आपको पता है कि इट इज लोएस्ट वन. मोस्ट अबंडेंट इज IgG and most least
अबंडेंट या अगर वो लोएस्ट कंसंट्रेशन पूछता है तो वो आपके पास IgE की होगी। मैक्सिमम सीरम कंसंट्रेशन अगेन मैंने बताया था मोस्ट अबंडेंट इज IgG, सो अबंडेंट या मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज फॉर IgG। अर्ली और प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सी आती है? अर्ली और प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब है कि यहाँ पे बात हो रही है क्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की, तो दैट इज IgM। डिलेड और लेट की बात करें, दैट इज क्रॉनिक स्टेट, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, दैट वुड बी IgG। वार्म एंटीबॉडी, अगेन वार्म आप याद रखें जो सबसे ज्यादा होगी और सबसे स्मॉलेस्ट होगी, दैट विल बी वार्म। और जो आपके पास कोल्ड है, कोल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स या कोल्ड एंटीबॉडीज वो हैं जो आपके भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुई और फौरन आ गई, तो दैट विल बी IgM। ठीक है, लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट वाली आपकी कोल्ड है, स्मॉलेस्ट वाली जो है दैट विल बी वार्म। तो स्मॉलेस्ट और कोल्ड, अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट याद होगी तो वार्म और कोल्ड का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। विच क्रॉसेज द प्लेसेंटा, ये मैंने IgG के साथ ही लिख दिया था पॉइंट, दैट इज IgG, इट क्रॉसेज द प्लेसेंटा। जितनी बॉडी की सिक्रीशंस होंगी, स्लाइवा है, मिल्क है, जितनी बॉडी सिक्रीशंस हैं, रिमेंबर उनमें IgA प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट मिल्क प्रोडक्शन में IgG भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसमें आपने याद रखना है कि अगर आपके पास सिक्रीशंस की बात हुई है तो आपने उसमें याद रखना है उसमें स्लाइवा भी आ सकता है, टीयर्स भी आ सकते हैं, बॉडी सिक्रीशन में IgA इन्वॉल्व होती है। एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय द बी सेल, एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बी सेल, इट मींस कि वहां पे अब आपके पास IgG की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी सेल का फंक्शन होता है एंटीबॉडीज बनाना, दैट इज IgG। एंटीजन जैसे रिकॉग्नाइज होगा तो वहां पे पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट इज IgG प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है तो इट मे बी रिजल्ट इन एक्यूट इन्फ्लामेशन और एज वेल एज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। यहाँ पे IgM भी हो सकती है और IgG भी हो सकती है, दोनों आ सकती है, डिपेंड अपॉन के रिस्पॉन्स कौन सा है और उसका ड्यूरेशन कितना है। क्लासिक पाथवे के लिए आपने निमोनिक याद रखने हैं GM का, और अल्टरनेट पाथवे के लिए होता है A स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव पाथवे एंड A स्टैंड फॉर GA। क्लासिक में आपके पास GM होती है बट M इज मोर देन G, इट मींस अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो यू विल टिक द IgM। अल्टरनेट पाथवे में आपके पास कौन सी आएंगी? G और A दोनों आ सकती हैं। ऑप्सोनाइजेशन हमने पीछे भी पढ़ा था, C3b इज यूज फॉर ऑप्सोनाइजेशन और इट इज यूज फॉर फेगोसाइटोसिस। 3A 4A 5A यानी कि 3A to 5A आपके एनाफाइलेक्सिस कराते हैं। 5A इट इज यूज फॉर कीमोटैक्सिस फॉर न्यूट्रोफिल्स। मैक कॉम्प्लेक्स का मैंने बताया था कि इसके कंपोजिशन का पूछा जाता है, तो दैट इज C5b to 9, ये आपने ऐसे याद रख लेना इसको, दैट इज C5b कंपोनेंट आएगा, वहां से लेके 9 तक जितने कंपोनेंट इसके इन बिटवीन आएंगे दे ऑल इंक्लूड द मैक कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज यूज फॉर साइटोलाइसिस, ये सेल्स की लाइसिस में हेल्प करता है। व्हाट इज मैक? यस प्लीज। व्हाट इज मैक कॉम्प्लेक्स? ये मैंने बताया था पिछले क्लास में, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यस वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे उसने वर्ड साइटोलाइसिस का लिख दिया, तो साइटोलाइसिस मीन कि इसने सेल की लाइसिस करनी है। लाइसिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज द डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सो इट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन ड्यूरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बार बार इसमें आपको पूछा जाता है और ये रिपीट होती है। रिएक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन दैट इज 1 एंड आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैट इज टाइप 2। Remember, when the word is during, it means there is allergic response or allergic reaction during the transfusion. So answer will be type 1 hypersensitivity reaction. But if there is a word of after the transfusion, so this is after blood transfusion, जब भी reaction होगा तो that will be type 2.
Anaplastic anemia, that is again type 2, but if there is a statement of anaplastic anemia along with a history of injection, then it is type 3. तो ये दोनों का डिफरेंस है. सिर्फ एनाप्लास्टिक अनीमिया की बात करेगा, इसका मतलब है ब्लड रिलेटेड है. ब्लड रिलेटेड जब भी कोई चीज आएगी आपने उसको टाइप 2 में कैटेगराइज करना है, ठीक है. लेकिन अगर उसने कहा है कि एनाप्लास्टिक रिएक्शन हुआ है अलोंग विद द इंजेक्शन, इट मे बी एनी वैक्सीन इंजेक्शन, किसी भी टाइप का उसको इंजेक्शन लग रहा है साथ, तो दिस इज टाइप 3. जिसका पीछे मैंने आपको एक एमसीक्यू बताया था और उसमें हमने पढ़ा था कि डिफ्थीरिया की वैक्सीन का एमसीक्यू था, तो that is also type 3 hypersensitivity reaction. History of contact and type 4 hypersensitivity. Contact की history है तो आपने बताना है कि that is due to organism. किसी भी organism के contact की history होगी, that is contact dermatitis है for example, तो that is type 4 hypersensitivity. वैक्सीन की बात आ जाए, एज आई टोल्ड इन दिस पॉइंट, कि इंजेक्शन की जब बात होगी 31 पॉइंट के अंदर मैंने बताया कि जब इंजेक्शन वैक्सीन की बात होगी, ट्रांसप्लांट की बात होगी, टिश्यू रिजेक्शन की बात होगी, तो दैट विल बी टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. अच्छा, इसके लिए बेस्ट ये है कि रफीउल्लाह के अंदर अगर आपने वहां से म्यूनो का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत अच्छा एक टेबल बना हुआ है हाइपरसेंसिटिविटी के टाइप्स का, टाइप 1, 2 एंड 3 एंड 4 वहां पे बनी हुई है. इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप उसी टेबल के अंदर यहाँ पे जो एडिशनल चीजें हैं ना, आप उसी टेबल के अंदर वहां पे नोट कर लें. जब आप रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, या आप लोग अब साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे, तो उसमें यही वाली चीजें जब आप ऐड कर देंगे तो यू वुड बी एबल कि आप मेमोराइज कर सकते हैं उन चीजों को अगेन एंड अगेन. ठीक है. रिकरेंट बैक्टीरियल एंड इन्वायरमेंटल इन्फेक्शंस हैं, दैट इज, ये मैंने आपको बताया था जब हमने जनरल पैथोलॉजी की थी कि रिकरेंट इन्फेक्शंस तब होते हैं व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है. when there is deficiency of immunoglobulins, so that is a gamma globulinemia, absence of immunoglobulins in the body. Most common primary immunodeficiency is IgA deficiency. IgA is commonest primary deficiency, which is also called as Job syndrome, as I told previously. A gamma globulinemia, it is the B cell disorder because there is deficiency of इम्यूनोग्लोबुलिन्स. बी सेल ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनानी है, वो नहीं बनाएंगे, ए गैमा ग्लोबिनीमिया हो जाएगा. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में ए टिपिकल बी सेल हो जाते हैं, बी सेल डिसऑर्डर होता है, इसमें बी सेल्स की शेप, साइज सब कुछ चेंज हो जाता है. रिकरेंट इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एक्जिमा. दिस इज अगेन अ ट्राइएड, ये मैंने आपको बताया था, इसमें वेस्प जीन इन्वॉल्व होगा एंड दिस इज विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम. Microtubule dysfunctioning and lysosomal defect, दिस इज कॉल्ड, दो चीजें हैं, अब माइक्रोट्यूब्यूल की भी डिसफंक्शनिंग हो रही है और लाइसोसोमल डिफेक्ट दे रहा है. इट मींस कि देयर इज द डिसफंक्शनिंग एट द ऑर्गेनेली लेवल, ऑर्गेनेलीज के लेवल पे डिफेक्ट आ रहा है. जीन इज वैस्प जीन, WASP, वैस्प जीन. वैस्प मैंने बताया था, इसको याद रखने का तरीका ये है, इसको आप उसके नेम से याद रखें डिजीज के, दैट इज विस्कॉट स्टार्ट विद W, एल्ड्रिच starts with A and syndrome start with S. तो WASP, ठीक है, एंड पे P आपने ऐड कर देना. तो दिस इज WASP gene which is involved in Wiskott Aldrich syndrome. Whenever there is a defect at the organelle level, this is called Higashi syndrome. इसको हिगैशी सिंड्रोम कहते हैं. आप याद रखें कि इसमें हिगैशी सिंड्रोम के अंदर आपके पास डिफेक्ट और डिसफंक्शनिंग होगी एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनेलीज. Then the next point is anti-TSH antibodies are positive in Graves' disease. Graves' disease is an autoimmune disease, most commonly occurring in females, and there is a production of autoantibodies against the TSH receptor. ठीक है, रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है. ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट की डेफिनेशंस है नेक्स्ट. ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, एलोग्राफ्ट क्या होता है, जीनोग्राफ्ट क्या होता है. ऑटो मीन सेल्फ, whenever the graft is
taken from the human and inserted in the same patient. So this is called autograft. Allograft stand for same species. स्पीशीज मीन एक ह्यूमन से लिया दूसरे ह्यूमन में इंजेक्ट कर दिया या उसे ट्रांसप्लांट कर दिया, दिस इज एलोग्राफ्ट. जीनोग्राफ्ट मीन इट इज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल एक से लिया है और दूसरे के अंदर उसने इंजेक्ट कर दिया. सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है आइडेंटिकल और क्लोन से कॉपी लेना, ठीक है. आइडेंटिकल ट्विंस या क्लोन जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं उनसे लेना, विच आर सिनर्जिस्टिक टू ईच अदर. उसके अंदर अगर एक ट्विन ब्रदर है उसका आपने लिया है टिश्यू दूसरे ट्विन के अंदर डाल दिया, तो दिस इज सिनर्जिस्टिक फॉर्म. ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्यों हो रही होती है? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की वजह से. एड्स नॉट एसोसिएटेड विद ल्यूकीमिया. एड्स के अंदर ल्यूकीमिया नहीं होता, बिकॉज एड्स इज अ कंडीशन जिसके अंदर आपके पास इम्यूनो सप्रेशन होती है, टी सेल रिस्पॉन्स कम होता है, इसमें ब्लड कैंसर के चांसेस कम है. देन HLA जीन्स का पूछा जाता है. HLA DR4 इज रूमाटाइड आर्थराइटिस एंड B27 ये मैंने पीछे बताया था, दिस इज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रीटर सिंड्रोम. हेपरिन इज रिलीज बाय मास्ट सेल नॉट बाय बेसोफिल. दिस इज इंपॉर्टेंट. हेपरिन की प्रोडक्शन कौन करता है? दैट इज मास्ट सेल्स. इट इज रिलीज्ड फ्रॉम मास्ट सेल्स और इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा होता है हेपरिन? यस, एनीवन? एंडोथेलियल सेल. ओके. प्लेटलेट. हेपरिन के लिए ना आपने दो चीजें याद रखनी है कि इसमें जब आपके पास ऑप्शन आए रिलीज्ड का, तो रिलीज होगा मास सेल से, और अगर पूछा जाए कि प्रोड्यूस्ड बाय, तो दैट इज बेसोफिल्स. ठीक है. लिवर के सेल भी इसको हेपरिन को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं. डिफरेंट टिश्यूज हैं जो बॉडी में इसको बना रहे होते हैं, वो रिलीज करते हैं. तो रिमेंबर व्हेन एवर देयर इज अ वर्ड ऑफ रिलीज, तो देन द ऑप्शन विल बी मास सेल्स. Commonest organism in transplantation is cytomegalovirus. This is also an important MCQ. ये भी आता है. Then most specific for SLE is, मैंने आपको बताया था कि एंटी डबल स्टैंडर्ड करना है, लेकिन अगर आपके पास एंटी स्मिथ का ऑप्शन है तो यू हैव टू टिक एंटी स्मिथ. अदर देन द नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन इज एंटी डबल स्टैंडर्ड. टाइप 1 टाइप हाइपर सेंसिटिविटी में एलर्जिक टाइप होती है, IgE प्रोड्यूस हो रही होती है. टाइप 2 के अंदर IgG प्रोड्यूस हो रही होती है. टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड एंड टाइप 4 जिसमें कोई एंटीबॉडीज रिलीज नहीं होती, ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. तो दीज 4 पॉइंट्स आर अगेन इंपॉर्टेंट, 52 to 55. HLA genes are present on chromosome number 6. IgE is found on the surface of basophils, mast cells, and eosinophils. Every cell which is involved in allergy that may cause the IgE production. It may be present on the surface of basophil, mast cell, and eosinophil. Patient with lung abscess and meningitis caused by. This is a bacterial infection, so Staph aureus. Abscess means skin को infection हो रहा है, तो आपने सबसे पहले सोचना है कि skin को कौन invade करेगा, तो that is Staph aureus. Antibodies produced by plasma cells or they may be B cells. इसके पीछे किसका रोल है? B cells का. HLA DR3 as well as DR4 both are involved in diabetes mellitus. DR3 की बात हो तो it is involved in Graves disease, और SLE में भी कौन सा होता है? HLA DR3 ऊपर मैंने आपको बताया था. तो आपने ये HLA DR के लेवल्स याद रखते हैं कि 1, 3, 4 किस में है, 2, 3 किसके अंदर हो रहा है, हैशीमोटोस के अंदर कौन सा है. ये नीचे मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इसको आप याद कर रख सकते हैं. डायबिटीज मेलाइटस की बात हो तो आप याद रखें डायबिटीज मेलाइटस की दो टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 इज ऑटोम्यून. सो ऑटोम्यून वाली जो डायबिटीज होगी उसके अंदर 3 और 4 दोनों होगा. ठीक है. देन SLE के अंदर 2 और 3 दोनों हो सकते हैं. हैशीमोटोस थायराइडाइटिस है, दैट विल बी 3.
मोस्ट कॉमनली इसमें 3 इन्वॉल्व होता है, विच इज ग्रेव्स डिजीज। सेलिक डिजीज है जो बच्चों के अंदर हो रही होती है, इसके अंदर DQ2 एंड DQ8 होते हैं। इसके अंदर DR नहीं आना, DQ का वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है, DQ2 एंड DQ8। देन बेशेट डिजीज है, ये एक स्किन की डिजीज होती है, इसमें B5 होता है। और ग्रेव्स डिजीज के अंदर DR3, एज जस्ट एज इन केस ऑफ हाशिमोटोस थायराइडाइटिस।